First, actually, we have solved problems like And questions basically. I have recorded one lecture, and the topic was like capital budgeting. So have you gone through that lecture? No, sir. Okay, you please visit the website, the YouTube channel, and you will find that lecture was recorded on 10th of May. Okay, the topic was capital budgeting. So, as as per your syllabus, we have already completed Unit 1. Under Unit 2, we have covered the maximum portion. Few things are left out. Covered under Unit 2, we have covered the meaning of capital structure, features of an appropriate capital structure, determinants of capital structure, leverages we have covered. Have we covered or not? Leverages. Yes, sir. Finance. Yes, sir. Leverage. We have covered. Leverage we have covered. Then capital budgeting, one the theory portion. Under the YouTube channel of the institute, you may find out and you may visit the channel, and you can get the benefit from that lecture. So capital budgeting. Mhm. But I have seen that lecture is uploaded on the YouTube channel. Hmm. Okay, so you will please coordinate with the student. Then under the capital budgeting, we have already discussed the meaning and definition. Then capital budgeting process, up to this we have already covered. Now what is left out in this? The cost of capital concept, importance, cost of equity, cost of debt capital, weighted average cost of capital. Madhusmita, just tell me, when you hear the word cost of capital, what comes to your mind? I recorded that lecture. Oh, hmm, hmm, hmm. No, no, it was recorded on 10th of this month regarding theory. Yes. Okay. 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 She will be going through. Later on, she may find, and it is already there. So today we will be discussing few techniques of capital structure. So I just asked her, hello, Madhusmita, why she is not there in the session? Okay. So there are in the session that I took regarding the recording of the lecture of capital budgeting, we have discussed about the techniques, the project evaluation techniques. So what are the techniques of project evaluation? There are few techniques. The first one is traditional method, which is also known as non-discounted cash flow method, under which payback period method is there. Then second one is accounting rate of return method is there. Okay. And the second method is modern method or discounted cash flow method. So under the discounted cash flow method or modern method, three methods are there.
Number one is the net present value method. The second is internal rate of return method. And the third one is profitability index or benefit cost index method. So Madhusmita, just do one thing. Come to, hello, Madhusmita, Yes, sir. just come to page number 41 of the material that you are having. Page In fact, number. 42. The scanned page number 42. Not serial number page, but not continuous page, but the scanned page. The heading would be project evaluation. Right, project evaluation techniques. So Yes. in the recorded lecture, I have already discussed about the payback period method, then the traditional method, the non-traditional method, discounted cash flow method that I discussed. So under the traditional method two methods are there. Number one is payback period method, and the second is accounting rate of return method. And under the modern methods or discounted cash flow methods, three methods are there. Number one is the net present value method, the second is internal rate of return method, and third is profitability index benefit cost ratio. Basically, these methods tells you whether to accept a project or not, whether to replace the machinery or not. So for taking all these kinds of investment decisions, a finance manager has to do certain calculations. Then there are certain limitations of all these methods that I have already discussed. Just come to the example illustration number 1, that is page number 42. Have you found out? Page Yes, sir. number It is below 4. only. Is the illustration? Yes. So there is one this chart is there, table is there for the calculation of what? CFAT. CFAT stands for calculation of cash flows after tax. ठीक है जी. इसमें क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन the sales revenue amount. Whatever sales revenue is given, that has to be written down. Then you have to deduct variable cost. What you get? Sales minus variable cost. It comes to what? Contribution. That we have already discussed. Discussed or not? Hello. Okay, so sales minus variable cost is contribution. From the contribution figure, you need to deduct the fixed cost of the firm. So after deduction of the fixed cost, what do you get? You get EBDT. EBDT stands for earning before depreciation and taxes. So, uh, Yeah. Yes. so last time, the way we have calculated for the leverage, it is the same way. Like earlier, we used to calculate EBIT, and it is the same way we have to See, calculate. see here the depreciation part is there. What we are calculating right now is cash flow after taxes, right? So this is known as cash flow after tax. So from the EBDT, we need to deduct what? Depreciation portion. Here, see, Madhusmita, Yes, sir. now what you are saying that it is the same way that we calculated the leverage, okay? Now in this calculation, do you find any interest? No, sir. No. There is one difference, that interest is not there. Yes, sir. Number two, in the previous one, you are not finding out any depreciation kind of thing. Here, depreciation is there. Yes, sir. Your depreciation is there. So, how is it same? See, depreciation, what is depreciation? Depreciation is basically notional cost. What is notional? What do you mean by notional cost? Madhusmita, tell me. First of all, tell me what do you mean by notional word in So English? I have no idea. See, So, notional means, yes, yes, sir, yes. actually, I told like that because for a contribution you asked for it, like contribution minus a fixed cost. So that is why I thought. So, from just from one line of the sentence, you cannot predict about the paragraph, right? Yes, sir. A paragraph
A book cannot be judged by seeing one line or two. In the similar fashion, you need to read the whole question before answering the in exam also. Please go through the question properly. Please read it carefully, understand it, then answer. Now, from the EBT, we need to deduct what? Taxes, and again, whatever EBT comes out, you need to add back the amount of depreciation that you have already deducted. So firstly, you have to deduct the depreciation, then again, after getting the after tax amount, you need to add back the amount of depreciation. I'll tell you why it is done. Okay. Then you get the CFAT. See what depreciation is. Depreciation is basically notional cost. It is not what we are calculating. We are calculating cash flows after taxes. कैश फ्लोज का मतलब क्या होता है जी, कि आपके पॉकेट से, पॉकेट मतलब आपके पर्स से नहीं, पॉकेट मतलब है समझिए आपके बिजनेस से एक्चुअल में कैश जो निकल रहा है, दैट इज कैश आउटफ्लो. डिड यू गेट माय पॉइंट? हाँ सर. तो बिजनेस से जब कैश जा रहा है, पैसा आप किसी को दे रहे हैं, बिजनेस से जब पैसा निकल रहा है तो वो हो गया कैश फ्लो. उसी तरह से बिजनेस में जब कैश आ रहा है तो हो जाएगा कैश इनफ्लो. सो इनफ्लो एंड आउटफ्लो एक्चुअल में अगर पैसा आ रहा है तो. लेकिन डेप्रिसिएशन जो है, वो डेप्रिसिएशन क्या है? आप एसेट्स को जो यूज करते हैं उसका जो वियर एंड टियर कॉस्ट है. डेप्रिसिएशन मतलब जो घसाता है, जो घिसाता है ना, जो मशीनरी है वो घिसेगा. चाहे आप एक गाड़ी ले आए खरीद करके, स्कूटी आज ले आए खरीद करके, मान लीजिए 1 लाख में, 1 महीने के बाद बेचिएगा, उसको घर में रखिएगा तो 1 लाख मिलेगा आपको कि कुछ कम मिलेगा? हाँ. भले उसको आप यूज नहीं कीजिए तो भी आपको दाम उसका कम हो जाएगा. तो वो तो रखा हुआ है, वैसे ही नया है. लेकिन मशीनरी के केस में या फिक्स्ड एसेट्स के केस में यू नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन. बट आप चार्ज कर रहे हैं, बट दैट डेप्रिसिएशन अमाउंट इज नॉट एक्चुअली गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन एक्चुअल इट इज नॉट स्पेंट. वो सिर्फ हम लोग दिखाते हैं कि इतना खर्चा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो पैसा बिजनेस से निकलता नहीं है. वो तो मशीनरी का हमने 10% मान लीजिए कि आपका 1 करोड़ का एसेट्स है, मतलब प्लांट एंड मशीनरी है. आप सुन रहे बात को? हाँ सर. समझ रहे बात को? हाँ, मान लीजिए 1 लाख का आपका प्लांट एंड मशीनरी है और उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हर साल. तो 10% कितना आएगा जी 1 करोड़ का? सर आपने 1 लाख बोला ना सर. अच्छा ठीक है, चलिए 1 लाख का ही 10% कितना आएगा? 10,000 आएगा? 10,000 आएगा? हाँ 10,000. तो अगर 1 लाख का मशीनरी है तो उसका 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो 10,000 रुपया आया. तो 10,000 आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा करके तब आप प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे, तब आपका एक्चुअल प्रॉफिट आएगा. लेकिन वो 10,000 जो है वो आपका एक्चुअल में बिजनेस से आउटफ्लो नहीं हो रहा है. आई बात समझ में? सर फिर से रिपीट कीजिएगा ये लास्ट पॉइंट. लास्ट पॉइंट और शुरू का पॉइंट यही है कि मान लीजिए आपका 1 लाख का मशीन है, ठीक है? 1 लाख का मशीन में 10% के हिसाब से आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं. हाँ. तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया जी? 10,000 हो गया. अब वो 10,000 रुपया क्या आपके बिजनेस से निकल रहा है एक्सपेंस, एज एन एक्सपेंस? नहीं निकल रहा है. लेकिन उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा रहे हैं कि भाई मेरा इतना 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किए हैं. तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सपेंस साइड में दिखा रहे हैं आप, तो उतना से तो प्रॉफिट कम हो रहा है ना आपको. हाँ सर. जबकि एक्चुअल में तो वो कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर. तो नहीं हो रहा है आउटफ्लो, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन अमाउंट को ऐड बैक किया गया है. क्योंकि यहाँ पे हम लोग कैश फ्लो बना रहे हैं. कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो जो होता है उसी को कंसीडर करेंगे. एक्चुअल में जो कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो डेप्रिसिएशन के रूप में एक्चुअल में आवर कैश इज नॉट आउटफ्लोइंग फ्रॉम द बिजनेस.
Now, the question number one, what it says, a project requires an initial investment of rupees 1,20,000 and yields annual cash inflow of 12,000 for 12 years. Find out the payback period. क्या बोलता है जी, एक प्रोजेक्ट है जो कि इनिशियल उसमें इन्वेस्टमेंट 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट चाहिए और वो हर एक जो साल है 12 साल तक 12,000 रुपए करके वो रिटर्न देगा. यील्ड्स मतलब रिटर्न. तो कैसे कैलकुलेट किया है पे बैक पीरियड, देख लीजिए. 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12,000, सो हाउ मच, 10 ईयर्स. तो पे बैक पीरियड क्या हो जाएगा, 10 साल में उसका पे बैक पीरियड हो जाएगा. आप ब्रेक इवन पॉइंट जानते हैं क्या होता है? नहीं सर. सी, in business the break even point is that point. See, initially you have invested, let's say 1 lakh in this question itself. 1,20,000 initial investment you did for buying a plant or a machine you bought for rupees 1,20,000. So do you think that within a year you would be in a position to cover the cost of 1,20,000 by utilizing that machine? नहीं समझ में आ रहा आपको? सर लाइक इसका तो मे बी हो सकता है ना कि अगर प्रोडक्शन सही रहा तो वो उसका खर्चा वो जो एक्चुअली वो निकल जाएगा, और अगर प्रोडक्शन सही है से नहीं रहा तो फिर तो ऐसा नहीं होता है मैडम. अगर प्रोडक्शन सही भी रहा ना तो 1,20,000 आपको छोटा अमाउंट दिख रहा है, लेकिन बड़ा अमाउंट भी होता है. लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट को आप 1 साल में 2 साल में कवर नहीं कर पाते हैं. हो सकता है कि या 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में. प्रोडक्शन कितना भी रहे, प्रोडक्शन तभी आप कीजिएगा जब आपका डिमांड रहेगा, जब मार्केट में उतना आपका डिस्ट्रीब्यूशन हाँ सर. चैनल है, उतना कस्टमर तक रीच है. हाँ तो ऐसा नहीं है कि आप जो है नया नया मशीन खरीदे 1,20,000 का, या एग्जिस्टिंग बिजनेस है फिर भी आप एक्सपैंड किए, नया मशीन में इन्वेस्ट किए और आपका तुरंत ही 1 महीना में उसका प्रॉफिट आ जाए, 4 महीना में आ जाए, 1 साल में आ जाए कवर कर. तो दैट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट. सो द ब्रेक इवन पॉइंट is a point where there is no profit or no loss. Neither profit is there nor loss is there, and at that point the business is able to cover its fixed cost. Fixed cost को cover कर पाती है. That is the break even point. ठीक है. So in case of unequal annual cash inflows, cumulative cash inflows will be calculated, and by interpolation the exact पे बैक पीरियड कैन बी फाउंड आउट. तो इसमें देखिए पे बैक पीरियड कितना हुआ, 10 साल कैलकुलेट किया है. ये क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए तो. The project requires an initial investment of rupees 20,000 and annual cash inflows for 5 years is rupees 6,000, rupees 5,000, rupees 4,000 and rupees 4,000 respectively. Find the payback period. देखिए क्या दिया है, प्रोजेक्ट का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 20,000 है. एंड एनुअली जो पैसा आएगा उस बिजनेस से 6,000, 5,000, 4,000, 4,000. तो कैश ईयर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में सॉल्यूशन में. कैश इनफ्लो 6,000. ठीक है. अभी देखिए क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज 6,000, 8,000, 5,000, 4,000, 4,000 है ना. हाँ सर. अब क्या दिया है, द अबव टेबल शोज दैट in 3 years rupees 19,000 has been recovered. ठीक है. and 1,000 is left out of initial investment. 20,000 में से तीसरा साल में company is able to recover 19,000 and only 1,000 has to be recovered. Yes. In the 4th year the cash inflow is rupees 4,000. It means that the payback period is between 3 years and 4 years. आ रहा है समझ में? Ascertained as follows. So payback period equals to 3 years. 3 years में 19,000 रिकवर कर गया प्लस 1,000 जो कि 1,000 और उसको रिकवर करना है, डिवाइडेड बाय 4,000. सो हाउ मच इट इज कमिंग? इट इज कमिंग टू 3.25 years. सो एक्सेप्ट और रिजेक्ट का डिसीजन कैसे लेंगे इस केस में? द डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल डिपेंड्स अपॉन हाउ द कंप्यूटेड पेबैक फिगर्स कंपेयर्स विद स्टैंडर्ड. अब उसका स्टैंडर्ड के साथ उसको आपको मैच करना होगा. स्टैंडर्ड
या बेंचमार्क का क्या है, बेंचमार्क या स्टैंडर्ड जो है वो कितना समय में कर रहा है और आपका प्रोजेक्ट कितना समय में कर रहा है, तो ये कैलकुलेट करना होगा आपको। ये सब जो है एज ए फाइनेंस मैनेजर डिसीजन लेना होता है कैलकुलेट करने के लिए। द पे बैक पीरियड स्टैंडर्ड वेयर 7 years, द प्रोजेक्ट विद 5 years पे बैक पीरियड वुड बी एक्सेप्टेड। अभी देखिए स्टैंडर्ड है 7 साल का, समझ में आ रहा है? और हेलो, हाँ सर। 7 साल में जो स्टैंडर्ड जो है मार्केट का स्टैंडर्ड 7 साल में रिकवर कर रहा है इनिशियल आउटले, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, लेकिन आपका प्रोजेक्ट 5 साल में ही जो है पे बैक पीरियड कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये उल्टा हो जाएगा, 7 के बदले इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है 7 साल और आपका प्रोजेक्ट कर रहा है 9 साल में, 8 साल में, तो आप कीजिएगा एक्सेप्ट, इसको नहीं कीजिएगा, इसको रिजेक्ट कर दीजिएगा इस प्रपोजल को। ये होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, ठीक है, एंड दिस 4 5 इज आल्सो होमवर्क। नाउ देयर आर, लेट अस डिस्कस अबाउट द मेरिट्स। बट सर मेरे वाले फाइल में, सर फाइल नहीं, पीडीएफ में क्वेश्चन 3 नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, नंबर 4 नहीं है। है तो मैं आपको भेज दूंगा, वो मैम से मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आई विल बी गिविंग यू, आई विल बी शेयरिंग, you will get. Now let us, you have got merit and demerits. हाँ सर। So what are the merits of this concept? The merits of हाँ पे, सर। पे, किसका मेरिट है ये पहले बताइए, ये किसका मेरिट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? सर ये हम प्रोजेक्ट लोग, इवैल्यूएशन टेक्निक जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। नहीं, ये हम लोग पे बैक पे प्रोजेक्ट बैक। इवैल्यूएशन, सुन लीजिए, पे प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन टेक्निक जो है वो 2 तरह का है, एक है ट्रेडिशनल मेथड, एक है मॉडर्न मेथड। तो ट्रेडिशनल, अंडर द ट्रेडिशनल मेथड्स 2 methods are there. Number 1 is payback period method and another is accounting rate of return method. Then again, under the modern methods or discounted cash flow methods, 3 methods are there. Number 1 is the net present value method, number 2 is internal rate of return method, and number 3 is profitability index or benefit cost ratio. So now we are discussing, under the traditional methods we are discussing payback period method. So this is the merits of payback period method. So what are the methods? Number 1, it is an important guide to investment policy. क्या मेरिट है? इट इज एन इंपॉर्टेंट गाइड टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, कितना करना है, एक्सेप्ट करना है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की, रिजेक्ट करना है। सो इट इज एन इन्वेस्टमेंट गाइड, इंपॉर्टेंट गाइड टू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। नंबर 2 इज इट लेज ग्रेट एम्फोसिस ऑन लिक्विडिटी। ये आपके लिक्विडिटी को दिखाता है कि आपका लिक्विडिटी का क्या लेवल है बिजनेस का। लिक्विडिटी मीन्स व्हाट, वेदर यू आर एबल टू पे विद इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम और नॉट, दैट इज व्हाट लिक्विडिटी मीन्स, ठीक है। नंबर 3 इज द रेट विच कैपिटल इज recouped has a positive significance. recouped मतलब क्या होता है, बोलिए। हाँ सर। ये थर्ड पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ? मेरे पास तो पॉइंट है नहीं मेरिट्स का, मेरे यहाँ पे डीमेरिट से यार, आप सर पॉइंट फिर से रिपीट कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, अब सुन लीजिए। पहला पॉइंट है इट इज एन इंपॉर्टेंट गाइड टू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। सेकेंड पॉइंट है इट लेज ग्रेट एम्फोसिस ऑन लिक्विडिटी, एंड द थर्ड पॉइंट इज द रेट विच कैपिटल इज रिकूप्ड। कैपिटल इज रिकूप्ड मतलब रिकवर, सोच लीजिए, रिकूप्ड मतलब रिकवर, has a positive significance. Number 4 is the method enables a firm to choose an investment which yields a quick return on cash funds. ये मेथड बताता है आपको आपका जो कैश फ्लो आउटफ्लो हुआ है उस पर क्विक रिटर्न कितना जल्दी आ सकता है, वो आपको गाइड करता है। नंबर 5 है it is an easy to understand, calculate and communicate to others. You need to communicate regarding this to the management, whether this project is viable or not, whether to accept this project or not. So it is easy to understand, calculate and communicate to others.
Now, number six is, other than its simplicity, the main advantage claimed for the payback method is that it is built in safeguard against risk. जो रिस्क है उसके बारे में बताता है, और रिस्क कितना लिया जा सकता है, और रिस्क से पहले ही आपको बता दिया जाता है कि क्या रिस्क है इस प्रोजेक्ट में. नंबर सेवेंथ है, इट enables a firm to determine the period required to recover the original investment with some percentage return on thus, and thus arriving at the degree of risk associated with the investment. ये आपको पहले ही बता देता है कि आपको कितना पीरियड लगेगा इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसको रिकवर करने में, कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया है उसको पे करने के लिए कितना. ये इसका मेरिट्स हो गया. तो एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ पे बैक पीरियड, तो ये सब मेरिट्स आप लिख दीजिएगा. अब उसी तरह से इसका कुछ डिमेरिट्स भी है. डिमेरिट्स क्या क्या है? नंबर वन, इट डज नॉट मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट. ये जो है प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं है ये नहीं बता पाता है. ये सिर्फ ये बताता है कि कितना समय में पे बैक हमको करना है. ठीक है. नंबर टू, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इग्नोर्ड. A rupee today is worth more than a rupee tomorrow. What do you understand by this? This is the time value concept. What is the time value of time value of money concept? The time value of money concept says that a rupee today is worth more than a rupee received tomorrow or day after tomorrow. Did you get my point? आज आपको कोई 100 रुपया देगा वो लीजिएगा, कि कोई 10 दिन बाद देगा वो लीजिएगा? आज जो देगा. तो दिस इज व्हाट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी से. आपको क्या है, आज मिल जाएगा तो उसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा. तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इग्नोर्ड इन दिस मेथड, पे बैक पीरियड मेथड. नाउ नंबर थ्री इज, इट डज नॉट वैल्यू प्रोजेक्ट्स ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक लाइव्स. ये प्रोजेक्ट का जो डिफरेंट इकोनॉमिक लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ मतलब क्या हुआ, प्रोजेक्ट आपका कितना दिन तक चलेगा, कब तक चलेगा, इसके बारे में ये वैल्यू नहीं कर पाता है. नंबर फोर्थ क्या है, इट इज ओनली अ रूल ऑफ थंब मेथड. ठीक है. ये मतलब ये कैसा हो गया, ट्रेडिशनल अप्रोच में ये जो है एक रूल ऑफ थंब हो गया. मतलब ये है जैसे सड़क के बाएं और चलिए, ये एक रूल हो गया. लेकिन कभी कभी आदमी लोग दायां भी चलता है कि नहीं? तो रूल ऑफ थंब हो गया, एक बुक में है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका मेरिट्स भी है कुछ, वो मेरिट्स भी देखना होगा आपको. इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू जज ऑब्जेक्टिवली वेदर वन प्रपोज्ड प्रोजेक्ट इज सुपीरियर टू अनदर, एंड इफ सो बाय हाउ मच. ये कंपेयर नहीं कर पाता है कि एक प्रोजेक्ट ज्यादा सुपीरियर है या दूसरा प्रोजेक्ट इंफीरियर है, उस बारे में कंपैरिजन ये नहीं कर पाता है. नंबर फिफ्थ है, नो अलाउंस इज मेड फॉर टैक्सेशन नॉर इज एनी कैपिटल अलाउंस मेड. टैक्सेशन के लिए कोई प्रोविजन ये नहीं करता है. अभी नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्या, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. अच्छा मधुस्मिता, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस योर इंटरनेशनल बिजनेस, यू नो और नॉट? Yes, sir. Yesterday you had taken a class of it. I have taken a class, but you are not there. You should have been. Have you gone through the lecture? Not yet, sir. Please go through. It's very interesting. You will find it very interesting. Okay, and try to be in the class because it should be interactive one, right? Okay, sir. Because in the class in between, if you have any question, any doubt, you can answer. I have something to ask you to make you understand in a better way. It is always good to be in the class. Yes, sir. From next time, I'll make it sure. I'll be there. Okay, if you don't have time in the day hour, you can ask ma'am to schedule it later on in the evening also. I would be doing it, so that it should be interactive. It should not be like one-way communication. Okay. Okay, sir. Now, next is accounting rate of return. So what it is? Accounting rate of return method uses accounting information as revealed by financial statements. So what are the financial statements? Financial statements are basically profit and loss account, balance sheet,
cash flow statement, all these are your financial statements. So whatever figures the financial statements or financial data or accounting data reveals, that information is used or utilized to measure the profitability of the investment proposals. इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को क्या है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं, वो ऑलरेडी अकाउंटिंग डेटा से आया हुआ है, वहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड. ये क्या है जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ये पहला था हमारा पे बैक पीरियड मेथड, ये हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड. समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ARR. जैसे पे बैक पीरियड मेथड को पीबी भी कहा जाता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में पीबी. और इसको क्या कहा जाता है, ARR. हाँ जी, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. एवरेज एनुअल अर्निंग्स आफ्टर डेप्रिसिएशन. तो अभी जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, क्या मैंने जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया है पे बैक में, Yes, sir. तो Payback. Yes. एवरेज एनुअल अर्निंग्स आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेज आर यूज्ड टू कैलकुलेट ARR. इसमें क्या किया जाता है, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद और टैक्स माइनस करने के बाद जो अर्निंग है उसको यूज किया जाता है ARR कैलकुलेट करने में. सो ARR कैन बी कैलकुलेटेड इन 2 ways. Number one, first way is whenever it is clearly mentioned as accounting rate of return. अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या है, तब कैसे होगा कैलकुलेशन. इफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन इन द प्रॉब्लम, रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मेथड शुड बी यूज्ड टू कैलकुलेट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. तो अगर मान लीजिए दिया हुआ है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, तो उस केस में रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मेथड यूज किया जाएगा. रिटर्न क्या है, ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न आएगा वो मेथड यूज किया जाएगा. उस मेथड का फॉर्मूला क्या है, ARR का, एवरेज एनुअल EAT और PAT स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT स्टैंड्स फॉर अर्निंग आफ्टर टैक्स, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट. तो सबसे पहले आप अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालिए. अर्निंग आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, it will Yes. come to contribution minus fixed cost. It will give you what, EBT minus depreciation से EAT आ जाएगा. minus depreciation minus tax, that will be your PAT or EAT divided by original investment या initial outlay. ठीक है, तो ये आपको हो गया. अभी क्या है, नेक्स्ट है whenever it is clearly mentioned as average rate of return. तो ARR निकालने का 2 मेथड है. एक है आपको जब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न दिया है तब, और जब आपको एक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न दिया है तब. तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन इफ इट इज गिवन. मुझे कि लाइक अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, मतलब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, लाइक देखिए, एवरेज मतलब क्या होता है, एवरेज जब भी आप निकालते हैं तो एक साल नहीं, 2 साल 3 साल का आप ले करके निकालते हैं. आया समझ में. मान लीजिए कि एक स्टूडेंट का अगर हमको पास करना है MBA का फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में, तो क्या करेंगे, उसको मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट में अगर 10 सब्जेक्ट है, किसी में A लाया, किसी में B लाया, किसी में B+ लाया, किसी में D भी ग्रेड लाया, ठीक है, या C भी लाया है, तो ओवरऑल उसका परसेंटेज होना चाहिए कि चलो 60%. आ रहा है समझ में, कोई एक सब्जेक्ट लेके नहीं. तो व्हेन एवरेज इज गिवन, एवरेज मींस व्हाट, 2 or more than 2 years figures are considered for calculating the average. कि भाई पिछले साल क्या आया था, एवरेज. किसी को बोलते हैं ना एवरेज है, ये एवरेज परफॉर्मेंस है. तो एवरेज मतलब क्या है, और एक होता है एक्सीलेंट परफॉर्मर. तो अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया रहेगा कि अकाउंटिंग प्रॉफिट इतना है इस साल का, मतलब उसी साल का हो जाएगा वो. आ रहा है समझ में, पर्टिकुलर ईयर का हो जाएगा. यस सर. और एवरेज मतलब हुआ कि हाँ, कि पिछले साल इतना था, उसके पिछले साल इतना था, 3 साल का. हाँ, बस. तो एवरेज वो भी दिया रहेगा. इफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन इन द इलस्ट्रेशन, रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड शुड बी यूज्ड टू कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. इसका फॉर्मूला क्या है जी, एवरेज एनुअल PAT या EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट. एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे आता है,
ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि 2 मतलब क्यों? क्योंकि 1/2 मतलब कि एवरेज निकाल रहे हैं ना, हाँ सर। तो एवरेज के लिए डिवाइड बाय 2 करना होगा ना। हाँ सर। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू, व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू? नहीं पता सर। देखिए, एक होता है स्क्रैप, एक होता है वेस्टेज, ठीक है। तो वेस्टेज का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन स्क्रैप का वैल्यू है। हाँ। आप जब कूलर खरीदते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल समझ, कूलर खरीदे आप, ठीक है, गर्मी महीना में, आपने 3 साल पहले खरीदा था, लेट से वो कूलर आपने 3 साल खूब यूज किया गर्मी में। इस बार गर्मी में यूज करने गए तो देखे कि कूलर का कुछ मोटर खराब है या कुछ पता नहीं, कुछ भी खराब है जिसमें कि हैवी इन्वेस्टमेंट लगेगा, बट स्टिल यू कैन सेल दैट कूलर टू कबाड़ी वाला। हाँ सर। तो स्क्रैप हुआ ना जी, वहां से कुछ पैसा मिलेगा ना, 200 400 500 कुछ तो मिलेगा। आपने हाँ। सपोज 5,000 का कूलर खरीदा तो कम से कम 300 रुपये, 400 500 तो मिलेगा। हाँ। हम्म। बेस तो नहीं है वो पूरा उधर। तो स्क्रैप वैल्यू में कुछ तो पैसा आएगा, दैट इज व्हाट स्क्रैप। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आपने 5,000 किया था, लेट से, तो 5,000 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 2 आया समझ में? यस सर। ठीक, प्लस एडिशनल NWC एंड प्लस स्क्रैप वैल्यू। इफ ARR, क्या होता है सर? ये NWC क्या यूज किया है ये मुझे भी नहीं पता, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। इफ ARR, ये NW क्या है ना, ये आपका मटेरियल है ना, आई डोंट नो NWC व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। NWC न्यू, no, I don't have idea. I'll let you know later on. Okay, later on I'll tell you. ओके If सर। ARR is given in the problem, any one of the above method can be used to calculate ARR. अगर ARR दिया है, दे दिया है, तो सिंपली आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अब इसको देखिए, एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है क्या, वेदर टू एक्सेप्ट द प्रपोजल और टू रिजेक्ट द प्रपोजल, क्या है? एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपका कैलकुलेशन जो है ARR इज मोर देन द प्री डिटरमाइंड ARR और कट ऑफ रेट, मतलब एक्चुअल ARR जो है वो ज्यादा है, ठीक है। एक्चुअल जो कैलकुलेट करके जो ARR आ रहा है आपका, हाँ सर। वो ज्यादा आ रहा है पहले से जो डिटरमाइन किए हैं उससे। जैसे अभी हमने यहाँ बताया एक एग्जांपल, प्रीवियस एग्जांपल में, कि स्टैंडर्ड रेट है आपका 7, स्टैंडर्ड जो पे बैक पीरियड है 7 ईयर्स है, और आपका प्रोजेक्ट 6 ईयर्स में, कैलकुलेशन के हिसाब से 6 ईयर्स में वो कर रहा है, मतलब वो पे बैक कर रहा है, तो वो प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट करेंगे ना। हाँ सर। लेकिन अगर हमारा स्टैंडर्ड है 7 और हमारा 9 ईयर्स में पे बैक हो रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट की रिजेक्ट, क्या करेंगे? रिजेक्ट। तो रिजेक्ट उसी सर। तरह से सिमिलरली हियर, इफ AR एक्चुअल कैलकुलेटेड ARR is more than the predetermined ARR or cut off rate, then it has to be accepted, ठीक है। हाँ रिजेक्ट सर। करेंगे कब? जब कैलकुलेटेड ARR कम है, लेसर देन द प्री डिटरमाइंड ARR, तो उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अंडर कंसिडरेशन रखेंगे किसको? जब एक्चुअल ARR का कैलकुलेशन प्री डिटरमाइंड के बराबर है इक्वल्स है, तो उसको हम लोग अंडर कंसिडरेशन रखेंगे, ठीक है ना। यस सर। नाउ यू रीड एडवांटेजेस ऑफ ARR मेथड। The most significant merit of ARR is that it is very simple to understand and easy to calculate. ये क्या है? बहुत ही इजी है और सिंपल है अंडरस्टैंड करना भी और कैलकुलेट करना भी। नंबर 2, Information can easily be drawn from accounting records. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में सारा कुछ दिया हुआ है आपका, ठीक है। प्रॉफिट है आपका, कितना एक्सपेंस हुआ है वो दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू है तो वो दिया हुआ है, तो अकाउंटिंग का रिकॉर्ड से सारा कुछ आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। It takes into account all profits of the project's life period. वो प्रोजेक्ट कितना दिन तक आपका चलेगा, उसका लाइफ पीरियड क्या होगा, उसका कितना प्रॉफिट होगा, वो सारा कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए।
Cost involvement in calculating payback period is very less in comparison to sophisticated methods, since it saves analysis time. एनालिस्ट टाइम, इसमें ज़्यादा एनालिसिस करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम अकाउंटिंग से डेटा ले रहे हैं अकाउंट से, तो ज़्यादा एनालिसिस करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा हमको, ठीक है। अब इसका लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस ऑफ एआरआर मेथड क्या है, ये सब थ्योरी पार्ट के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एआरआर मेथड सफर्स फ्रॉम सीरियस डिमेरिट्स, सीरियस है, बहुत ज़्यादा सीरियस है इसका डिमेरिट्स, देख लीजिए। पेबैक से अच्छा है लेकिन तभी भी इसमें इतना सारा डीमेरिट्स है। देखिए ऐसा है ना, हर चीज का दो पहलू है, ठीक है। अभी मोदी गवर्नमेंट को बहुत लोग बोल रहा है अच्छा है, लेकिन बहुत लोग उसमें डिमेरिट्स भी निकाल रहा है ना, नहीं निकाल रहा है, भले वो हाँ 370 हटा दिया, क्या बोलते हैं, जीडीपी इतना पहुंचा दिया, राम मंदिर बन गया, XYZ बहुत सारा किया, इंडिया को एक लेवल में पहुंचा दिया, तो होने के बावजूद भी उसका डिमेरिट्स है ऐसा। और एक चीज और जान लीजिए, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमी हमेशा निकाला जा सकता है। ठीक है। आगे पढ़िए। इट यूजेस अकाउंटिंग प्रॉफिट्स इंस्टीड ऑफ एक्चुअल कैश फ्लोज आफ्टर टैक्सेस। अब देख लीजिए इसमें क्या है, ये क्या है, अकाउंटिंग प्रॉफिट ये कंसीडर करता है इंस्टीड ऑफ एक्चुअल कैश। अभी क्या है, एक्चुअल कैश फ्लो, जैसे मैंने बताया कि डेप्रिसिएशन के केस में एक्चुअल कैश फ्लो नहीं होता है, जबकि अकाउंटिंग जो बनाते हैं, मतलब अकाउंट जो बनाते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन कंसीडर करते हैं, हाँ तब जाकर डेप्रिसिएशन घटा करके माइनस करके तब हमारा प्रॉफिट आता है। तो वो प्रॉफिट तो हमारा एक्चुअल नहीं हुआ। पे बैक पीरियड में डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, फिर डेप्रिसिएशन को जोड़ देते थे, हाँ क्योंकि वो डेप्रिसिएशन हमारा एक्चुअल कैश आउटफ्लो नहीं होता था। जबकि यहाँ पे हम अकाउंटिंग डेटा लेते हैं, अकाउंटिंग डेटा लेने के लिए जब अकाउंट्स बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करके बनाते हैं। तो माइनस क्यों करेंगे जब जब हमारा एक्चुअल में कैश आउटफ्लो हो ही नहीं रहा है, तो ये इसका डिमेरिट्स आया समझ में बात? हाँ सर। आया कि नहीं? डू यू गेट माय पॉइंट और नॉट? हाँ सर, ये पॉइंट आया। तो आगे पढ़िए, आप पढ़िए तो। सर उसी पॉइंट को कंटिन्यू करना था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। Accounting profits are inappropriate for evaluating and accepting projects since they are computed based on arbitrary assumptions. Arbitrary. Arbitrary assumptions and choices, and also include non-cash items. जैसे for example depreciation is non-cash items. As I told you, it is a notional cost, not actual cash outflow. So non-cash items को भी consider करता है profit and loss account. तो इसीलिए ये arbitrary assumptions पर ये काम करता है। Next is it ignores concept of time value of money. टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो मैंने बताया, a rupee today is worth more than a rupee tomorrow or tomorrow. So it ignores the concept of time value of money. It does not follow profits to be reinvested. अब प्रॉफिट जो आ रहा है उसको रीइन्वेस्ट करना है, उसको भी फॉलो नहीं करता है। आगे पढ़िए। It does not differentiate between the size of investment required for each project. It does not differentiate between the size of the investment required for each. कितना साइज करना है, कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है, किस प्रोजेक्ट के लिए करना है, किस प्रोजेक्ट पे कितना पैसा डालना है, ये कंसीडर नहीं करता है ये। नेक्स्ट पढ़िए। It does not take into consideration any benefits which can accrue to the firm from the sale of equipment in abundance which is replaced by the new investment. It does not take into consideration any benefits which can accrue to the firm from the sale of equipment in abundance with the replaced by the new investment. ये जो है कोई भी जो मशीनरी को रिप्लेस करना, एक होता है रिप्लेस करना है, एक होता है कि नया खरीदना है, एक होता है रिप्लेस करना है, एक्सचेंज। हाँ, तो उसको कंसीडर नहीं कर सकता। इट फील्स दैट 10% rate of return for 10 years is more beneficial than 8% rate of रिटर्न फॉर 25 ईयर्स। देखिए
ये कैसे करता है कैलकुलेशन कि 10% का रेट ऑफ रिटर्न 10 साल के लिए मिलता है तो ज्यादा बेनिफिशियल दिखाता है देन अगर मान लीजिए 10% मिलता है लेकिन 25 साल तक मिलता है वो ज्यादा बेनिफिशियल है। 10% 10 साल। नहीं, आपको 2% कम मिल रहा है लेकिन वो 25 साल तक मिल रहा है, लेकिन ये 2% ज्यादा मिल रहा है, ये सिर्फ 10 साल तक ही मिल रहा है। तो आप ओवरऑल कैलकुलेट कीजिए तो कितना ज्यादा 25 साल वाला में कितना ज्यादा मिल रहा है आपको, फिक्स्ड रिटर्न, फिक्स मिल रहा है रिटर्न। आया बात समझ में आपको? 8% ही मिल रहा है लेकिन वो 25 साल तक मिल रहा है, लेकिन ये तो सीधा 10 साल तक ही मिल रहा है। और 10% सिर्फ 2% ज्यादा मिल रहा है लेकिन 10 साल तक मिल रहा है, लेकिन वो 15 साल और आगे मिल रहा है। हाँ सर, मैं एक्चुअली लोन का बोल रही, हाँ ठीक है सर, हाँ 8%। इट इज इनकम्प्लीट विद objective of wealth maximization to it is incompatible sorry it is incompatible with the objective of wealth maximization to the equity shareholder। जो इक्विटी शेयर होल्डर है आपका, ये मैंने डिस्कस किया है ना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो बिजनेस ओनर्स है उसका मोटिव होता है प्रॉफिट, डिस्कस किया है कि नहीं मैंने? हाँ सर। तो ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है इट इज इनकम्पैटिबल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट इज इट यूजेस आर्बिट्रेरी कट ऑफ एज यार्डस्टिक और स्टैंडर्ड फॉर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। अब ये एग्जांपल देखिए क्या लिखा है, द वर्किंग रिजल्ट ऑफ टू मशीन्स आर गिवन। ये है एग्जांपल आपके पास में? यस सर। मशीन एक्स मशीन वाई, कॉस्ट है 45,000, 45 दोनों का 45,000 कॉस्ट है। सेल्स पर ईयर, अब मशीन एक्स से कितना सेल्स हो रहा है जी? 1 लाख हो रहा है मशीन एक्स का, मशीन वाई का 80,000 का हो रहा है। टोटल कॉस्ट पर ईयर कितना हो रहा है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हटा करके 36,000 एंड 36,000। अब एक्सपेक्टेड लाइफ क्या है? 2 years है एंड 2 years है। विच ऑफ द टू शुड बी प्रेफर्ड? अब बताइए कैसे बनेगा। सबसे पहले देखिए कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज निकालना होगा तभी तो बता सकते हैं ना कि प्रेफरेबल। तो वही निकाला है, देखिए मशीन एक्स एंड मशीन वाई। सेल्स पर ईयर दिया हुआ है कितना? 1,80,000। cost per year is also given 36,000 and 36,000. So sales minus cost is how much? 64,000 and 50,000. Are you getting? हाँ सर। Minus depreciation, depreciation is not the actual expenses. Okay, it is non-cash items. So depreciation has to be deducted. So depreciation is how much? How much depreciation? 22,500 and this has been calculated. कैसे डिप्रिसिएशन इसने कैलकुलेट करा, मतलब कि लाइक हाउ डू वी कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन ऐसे करेंगे, ये देखिए आपका एक्सपेक्टेड लाइफ दिया है, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर बोलिए, मैं लिख रही हूँ। तो आपका 45,000 हो गया वो 45,000, ठीक है, 45,000 है ना जी। तो कॉस्ट है, कॉस्ट माइनस अभी हमने यहाँ पे निकाला है ना, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या है? 0 है, कुछ नहीं दिया है। तो लिखिए कॉस्ट माइनस 0 डिवाइडेड बाय आपके जो ये मटेरियल है ना, इसमें आधा अधूरा चीज है एक्चुअली। ये तो मुझे आता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अलग अलग बुक से मैंने पढ़ा है, बट इट इज दिस मटेरियल इज नॉट सफिशिएंट एक्चुअली। सो दिस 45,000 माइनस 0, 0 is what? Scrap value divided by expected life. So what is expected life? It is 2 years. So divide 45,000 divided by 2. How much you are getting? 22,500 आ गया डेप्रिसिएशन उतना है मशीन एक्स का। हाँ सर आ गया। और मशीन वाई का निकालिए अपने से। यस सर। इसका जो 15,000 आ रहा है, क्योंकि तो आ गया 15,000।
तो अब नेट प्रॉफिट उसको उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए, माइनस करने से क्या आ गया, नेट प्रॉफिट 41,500, 35,000 आ गया। एवरेज इनकम कितना दिया हुआ है जी? एवरेज इनकम तो नहीं गिवन है, वही होगा। ठीक है, वही हो जाएगा एवरेज इनकम 35,000 एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है 22,500 एंड 22,500। अब देखिए यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला है, 4x दिस 41,500 डिवाइडेड बाय 22,500, इट इज कमिंग टू 184%। ठीक है, देखिए अब इसमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है वो आपको कैलकुलेशन से देखना है। इसका जो इलस्ट्रेशन नंबर 7 है इसको बनाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। अभी नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न वो तो बनाए हम लोग। मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, उसमें दो मेथड था, एक था पे बैक पीरियड और एक था एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, वो हमने किया है ना मॉडर्न टेक्निक्स में, सॉरी मॉडर्न ट्रेडिशनल टेक्निक्स में। अभी नेक्स्ट है मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग और डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। नाउ मॉडर्न और डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स take into consideration almost all the deficiencies of the traditional methods and consider all the benefits and costs accruing during the project's entire life। तो क्या बोलता है, पढ़िए तो एक बार ये डेफिनेशन। Read. Modern discounted cash flow techniques take into consideration almost all the deficiencies of the of the traditional method। 1 minute। ट्रेडिशनल मेथड का जितना भी डेफिशिएंसीज है, जितना भी ड्रॉबैक्स है, जितना भी वट एवर शॉर्ट कमिंग्स आर देयर दैट इज बीइंग कवर्ड, उसको यहाँ पे कवर करता है। एंड कंसिडर ऑल द बेनिफिट्स, तो जितना भी उसका ड्रॉबैक्स है उसको भी कंसिडर किया है और जितना बेनिफिट है उसको भी कंसिडर किया है यहाँ पे। एंड कॉस्ट अक्रूइंग ड्यूरिंग प्रोजेक्ट्स एंटायर लाइफ पीरियड। नाउ मॉडर्न टेक्निक्स कैन बी अगेन सब डिवाइडेड इनटू 3, नेमली अब मॉडर्न टेक्निक्स में 3 टेक्निक है। पहला है नेट प्रेजेंट वैल्यू, दूसरा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तीसरा है ट्रायल एंड ट्रेल गलत है, ट्रायल होगा, TRIAL होगा, ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और डिस्काउंटेड बेनिफिट। नाउ नंबर 1 इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इज वन ऑफ द डिस्काउंटेड, इसको पढ़िए क्या लिखा है। The net present value method is one of the discounted cash flow methods. It is also known as discounted benefit cost ratio method. ठीक है, पढ़िए। सर ये तो गलती है ना, क्या चीज? The net present value method is one of the discounted cash flow methods. It is also known as discounted benefit cost ratio method। क्या गलती है? क्योंकि इससे पहले वाले में लिखा था सी नंबर पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, PI को हम लोग कहते हैं PBCR। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड बोलते हैं इसको। हाँ, डिस्काउंटेड नहीं, ठीक है, डिस्काउंटेड बेनिफिट पढ़िए ना। ठीक है पढ़िए। NPV कैन बी डिफाइंड एज, अच्छा, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड को एनपीवी भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में आता है एनपीवी तो एनपीवी यू शुड अंडरस्टैंड नेट प्रेजेंट वैल्यू, पीबी यू शुड अंडरस्टैंड पे बैक पीरियड, ARR यू शुड अंडरस्टैंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ये सब शॉर्ट फॉर्म आपको याद करना है। चलिए आगे पढ़िए। एनपीवी कैन NPV can be defined as present value of benefits minus present value of cost। तो NPV क्या है, एक लाइन में याद कर लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रेजेंटली कितना बेनिफिट मिल रहा है और प्रेजेंटली कितना कॉस्ट जा रहा है। तो एट प्रेजेंट क्या हो रहा है उसके बारे में बताता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोज यूजिंग कॉस्ट ऑफ कैश। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, जो कैश आप दे रहे हैं, इनफ्लोज या आउटफ्लो जो हो रहा है कैश का, उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है। ठीक है,
यूजिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जो इक्विटी और डेट जो बिजनेस में लगा है, इक्विटी को एक्वायर करने का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना लगा है, डेट को एक्वायर करने का कॉस्ट ऑफ डेट कितना लगा है. सो कंबाइनिंग टुगेदर दैट कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट, combining together these both cost will become your cost of capital. So what they are saying, have you understood or not? नो सर, ये नहीं समझ में आया। देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, अभी आप ऐसा समझिए, बिजनेस में कितना तरह का कैपिटल हो सकता है जी. बिजनेस में दो तरह का होता है, एक होता है ओन्ड कैपिटल, एक होता है बोरोड कैपिटल. ओन्ड कैपिटल मतलब क्या होगा, इक्विटी शेयर, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. तो आप खुद का जो लगाए हैं पैसा, दैट इज इक्विटी शेयर, दैट इज ओन्ड कैपिटल. देन प्रेफरेंस शेयर, दैट इज ऑल्सो ओन्ड कैपिटल. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है. आ रहा है समझ में? हाँ सर। उसी तरह से आप जो है डिवेंचर, बॉन्ड्स इशू करती है कंपनी, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, ठीक है. तो बॉन्ड्स वगैरह इशू करती है कंपनी. अब मान लीजिए इक्विटी शेयर होल्डर है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दीजिएगा, दैट इज योर कॉस्ट. आया समझ में? कॉस्ट ऑफ इक्विटी. अरे भाई मान लीजिए आपका कंपनी है, XYZ कंपनी है, उस कंपनी, आपने कंपनी कागज पे बना ली, अब आपको कैपिटल चाहिए कि नहीं? हाँ सर। कैपिटल चाहिए. आप मेरे पास आए कि सर मुझे कुछ कैपिटल की जरूरत है. आपने अपना प्रपोजल दिया कि सर मेरा ये बिजनेस है, ऐसा ऐसा प्लान है, ये प्रोजेक्ट है, वहां से कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ऐसा इन्वेस्टमेंट लगेगा, ये सब सारा आपने बताया, मुझे आपने कन्विंस कर दिया. अब मैंने क्या किया कि 1 लाख रुपया आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ठीक है. अब 1 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं. जितना, हाँ मिलेगा सर, तो जितना मिलेगा. सुन लीजिए पहले. हाँ ओहो, अभी प्रॉफिट नहीं, पहले सुनिए. तो 1 लाख रुपया जो मैंने आपको दिया इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं बोलूंगा कि आपको, मुझे इक्विटी शेयर में इक्विटी शेयर होल्डर बनाना होगा. आपने शेयर इशू किया मुझे, और मैं आपके कंपनी में हिस्सेदार बन गया, ओनर्स बन गया, टू दैट एक्सटेंट, अप टू 1 लाख, ठीक है. 1 लाख में जितना भी शेयर आता होगा, अप टू दैट, equivalent to that amount, equivalent to that number of shares, I am the owners of your company also. You got my point? Okay, because I have done the investment and you have taken investment from me, so you have acquired capital from me. So that acquisition of capital, and I have told you to give me this percent, I mean this much of dividend. Equity shareholders get this much of dividend. Dividend is part of the profit which is distributed among the shareholders. So that expenses, that cost, that costing that you are giving or you are going to give me will be your cost of equity or cost of capital of equity share. Now you got the point or not? yes sir. ये हो गया एक पार्ट. एक तो मैंने इक्विटी शेयर का बताया, उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर्स होता है. अब एक दूसरा पार्ट समझ लीजिए. आपने इक्विटी शेयर, मुझे आप जानते थे, आपने ले लिया. अभी आप किसी और को भी जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, आपका कंपनी ब्रांडेड है, आपका जो आपके कंपनी के पीछे जो लोग हैं टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, आपका बिजनेस प्लान अच्छा है, एथिकल लोग हैं, ट्रस्टवर्दी लोग हैं, तो आपने डिवेंचर भी लाया, आपने बॉन्ड भी लाया, आपने बैंक से भी लोन लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट लिया. आ रहा है समझ में? हाँ सर. तो ये सब जो आप ले रहे हैं, बॉन्ड भी ले रहे हैं, तो बॉन्ड होल्डर को आप, डिवेंचर होल्डर्स को आप इंटरेस्ट दीजिएगा कि नहीं, कि फोकट में उसका पैसा यूज कीजिएगा? नहीं सर, देंगे इंटरेस्ट उसमें. तो वो आपका लायबिलिटी है, क्योंकि उसका भी पैसा आप यूज कर रहे हैं बिजनेस में, बिजनेस बनाने के लिए. तो वो जो इंटरेस्ट पे कीजिएगा, दैट इंटरेस्ट इज योर कॉस्ट ऑफ डेट. आ रहा है समझ में बात? हाँ सर. तो वो हो गया कॉस्ट ऑफ डेट हो गया, और इधर हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो जो कैपिटल होता है बिजनेस का, बिजनेस में क्या सब होता है, इक्विटी भी होता है एंड कैपिटल भी होता है. इक्विटी मतलब शेयर होल्डिंग, शेयर्स, एंड डेट मतलब जो मैंने बताया, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ओवरड्राफ्ट, लोन, ये सब जो बताया. तो इसका भी कॉस्टिंग है, लोन का, है ना? हाँ नहीं आ रहा समझ में?
सर आ रहा है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा दिक्कत आ नहीं, रहा है। कहाँ नहीं आ रहा समझ में? आप, मैंने बताया कि चलो XYZ कंपनी है आपका। अब XYZ कंपनी आपने शुरू कर लिया तो सारा पैसा आप अपने घर से ही लगाइएगा बिजनेस में, तो बिजनेस खड़ा हो पाएगा? बड़ा बड़ा बिजनेस, बड़ा बड़ा बिजनेस में तो बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, तब ना उसके पास कैपिटल आता है जी। हाँ हाँ सर। कि सिर्फ एक आदमी है, चलो बिजनेस शुरू करते हैं, लगा दिए 20 लाख, हो गया बिजनेस शुरू, उसी से हो जाएगा आपका बिजनेस। बिजनेस बढ़ गया, अच्छा खासा चल रहा है, तो उसमें और कैपिटल का जरूरत है ना। हाँ सर। तो कैपिटल का जरूरत है तो आप जाइएगा बैंक के पास कि भाई लोन दीजिए मुझे। हाँ तो लोन लीजिएगा तो डेट लीजिएगा, डेट मतलब लोन होता है ना। हाँ सर। तो डेट लीजिएगा तो डेट का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ यहाँ तक आ गया था एक मिनट हाँ। सुनिए, तो डेट डेट का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप क्या लिए हैं? डेट लिए हैं, तो डेट का जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दैट इंटरेस्ट पार्ट इज योर कॉस्ट ऑफ डेट। नाउ यू अंडरस्टूड? यस सर। सिमिलरली, you have issued shares. Okay, the shareholders bought your shares, so you need to pay the dividend to them. So that यस। dividend is your cost of equity. जैसे वहां इंटरेस्ट दीजिएगा तो कॉस्ट ऑफ डेट हो गया था, हाँ। वैसे यहाँ डिविडेंड दीजिएगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा। यस सर। तो अब ये इक्विटी पोर्शन और ये डेट पोर्शन दोनों कंबाइंड मिला करके होता है आपका टोटल कैपिटल। सो टोटल कैपिटल कंसिस्ट्स ऑफ इक्विटी पार्ट एंड डेट पार्ट। नाउ यू अंडरस्टूड? यस सर। Out of 100 there may be, let's say, 60% proportion is equity part and 40% आपने 1 लाख का 1 लाख कैपिटल लगाना है तो 60,000 आपने इक्विटी कैपिटल से रेज किया, 40,000 आपने डेट कैपिटल से रेज किया लोन से, तो 60,000 प्लस 40,000 हो गया। अब ये दोनों मिला करके जो आया है वो आपका हो गया 1 लाख, हो गया कंबाइंड कैपिटल, हो गया टोटल कैपिटल हो गया। यस। अब ये टोटल कैपिटल में इक्विटी का जो पार्ट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अलग है, जो डिविडेंड जो दे रहे हैं दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और ये डेट होल्डर को जो डेट का जो इंटरेस्ट दे रहे हैं दैट इज योर, या डिवेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट दे रहे हैं दैट इज योर कॉस्ट ऑफ डेट। अब ये कंबाइनिंग टुगेदर ये आपका कहलाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आ रहा है समझ में बात आपको? हाँ सर। नहीं आया तो पूछिए फिर से एक बार और पूछ लीजिए, मैं और बता दूंगा। ये आगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ यस, इक्विटी एग्जैक्टली एंड कॉस्ट एग्जैक्टली ऑफ डेट। एग्जैक्टली, कंबाइनिंग टुगेदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, हाँ तो चलिए यहीं तक रहने दीजिए, इसको आप पढ़िएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। और मैं अपना बुक से भी आपको 1-2 क्वेश्चन दूंगा, लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा कि आप मेरा क्लास में कोशिश कीजिए, क्लास कीजिएगा, ये प्रैक्टिकल भी है। ऐसा नहीं है कि मैं थ्योरी पढ़ दूंगा आप बना लीजिएगा समझ अगर नहीं कीजिएगा क्लास तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। मेरा काम क्या है? मेरा काम है कोर्स खत्म करना, मैं कर दूंगा, सिलेबस खत्म कर दूंगा, लेकिन if you do not get the benefit then what is the use of that thing? So don't you get time in day hour, during day hour? करेंटली तो बेसिकली वर्किंग रहती हूँ मैं। तो वर्किंग रहती है तो when are you free? Tell me, what is your free time? सब फ्री टाइम में तो कुछ कह नहीं सकते अब, लाइक मेरा वर्किंग आवर 10 to 7:30, कभी कभी 8 o'clock भी हो जाता है शाम के, तो इस बीच। यस सर। Monday to Sunday? मंडे टू सैटरडे है। Then why don't you attend the class on Sunday? Why can't we conduct on Sunday? Actually, I also want to finish this thing. It's I mean, just want to finish. Yes, sir, we can do it on Sunday. On Sunday, on see tomorrow, if this class is there, then whatever my class is there for international business or for this subject also, you please attend the class. Okay, sir. You are benefited or not? Tell me. Yes, sir. By attending the class, do you get the disadvantage or advantage of my class? सर एडवांटेज, क्योंकि पढ़ना अगर रहता तो नॉर्मल पीडीएफ से लिख, मतलब कि सिर्फ पढ़ के लिख देते, बट समझना भी तो है। तो फिर आप इंटरनेशनल बिजनेस का लेक्चर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
तो अच्छा लगेगा, आप क्लास में रहते तो और अच्छा लगता। तो वही मैं कह रहा था कि ऑन संडे इफ यू हैव टाइम अटेंड क्लास एटलीस्ट फॉर 2 hours। डोंट मेक संडे फन, ठीक है, और इसको फन खत्म की। करने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि ये मैं इससे पहले वाले संडेस में तो क्लास मैंने किया है। ये संडे एक्चुअली, ये 2 संडे के बारे में मैंने मैम को बोला था, एक्चुअली मैं शिफ्टिंग कर वजह से थोड़ा सा इशू। ठीक है, चलिए, आपका भी प्रॉब्लम को सुना जा रहा है, मैम सुन रही है, लेकिन आप जो है क्लास कीजिए, जब भी होता है कोशिश कीजिए करने का। और मैं आपको जो है सो मैंने इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि एग्जाम में अच्छा नंबर ले आइएगा, ठीक है। चलिए, जब ओके। भी होता है क्लास, बी इन द क्लास, वट एवर सब्जेक्ट, वेदर इट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट और दिस थिंग, एंड whatever we have done today. Do you have any question, any doubt, anything else? नो सर। If you don't, then please go through the material whatever you have, and go through the lecture also, okay? यस सर। ठीक है, चलिए, हाँ ओके, थैंक यू, बाय। सर, थैंक यू सर।